So as I said, this is the 5th part in the series. तो जैसे आपको बताया भी कि ये श्रृंखला का 5वां भाग है। And here we go. 2 Corinthians chapter 13. दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय। And let's read from verse 5 and 6. और आइए पढ़ेंगे उसके 5वें और 6वें वचन Look में। what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Examine yourselves as to whether you are in the faith. देखिए वचन में लिखा है, अपने आप को परखो, जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। Test yourselves. अपने आप को परखो। Do you not know yourself that Jesus Christ is in you? क्या तुम ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? Unless indeed you are disqualified. नहीं तो तुम सचमुच जांच में निकम में अयोग्य निकले हो। Verse 6. 6वां But वचन। I trust that you will know that we are not disqualified. पर मेरी आशा ये है कि तुम जान लोगे कि हम निकम में अयोग्य नहीं हैं। How many of you listening right now? कितना सुन रहे हैं इस वक्त? Now watch this. अब सुनिए। Now it's so easy for us to examine others. और देखिए बहुत आसान होता है हमारे लिए कि हम दूसरों को जांचें। You know, every now and then we are always looking at somebody else. और देखिए अक्सर हम यहाँ वहाँ देखिए किसी ना किसी दूसरे की ओर देखते रहते हैं। He's like this. वो ऐसे है And he shouldn't have done that. और उन्हें ऐसा नहीं करना And he चाहिए था should have done this. और उनको ऐसा करना चाहिए था। Man, or rather woman, anybody, is constantly examining others. इंसान कहें स्त्री या पुरुष जो कोई भी है हमेशा जो दूसरों को जांचते रहते हैं। You know, it's like an inbuilt feature in us. और जैसे कि अंदर ही बना हुआ एक फीचर जैसा है। How many are listening right now? कितना सुन रहे हैं इस वक्त? The congregation is examining the preacher is examining the congregation, the husband is examining the मंडली जो है wife, and the wife is always. मंडली जो है प्रचारक को जांचती रहती है। Anyway, प्रचारक जो है let's not मंडली को go there. जांचते रहते, पत्नी जो है पति को जांचती रहती है और पति जो है हमेशा पत्नी को ही जांचते रहते हैं। Yes, एक दूसरे को जांचते रहते हैं. Go to Matthew. Jesus spoke about this. देखिए यीशु ने भी इसके बारे में बातें कही। Matthew 7. मत्ती का 7वां And अध्याय। let's read verse 3 and let's get deeper now. और चलिए इसकी गहराई में जाएंगे अभी। Why do you look at the speck, that's a small splinter, in your brother's eye, but you do not consider the plank in your own eye? और देखिए यहाँ पे लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को जो छोटा सा होता है देखता है, लेकिन अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? Or how can you say to your brother, let me remove the speck from your own eye, and look, a plank is in your own eye? देखिए 4वां वचन, जब तेरी ही आंख में इतना बड़ा लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? And Jesus has a word. Verse 5. 5वां वचन, He says, hypocrite, यीशु ने कहा, हे कपटी, first remove the plank from your own eye, and then you will see. Everyone says, see clearly. To remove the speck from your own eye. यीशु ने कहा, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका अच्छे से देखकर निकाल सकेगा। Now, Jesus is giving us some advice. देखिए यहाँ पर यीशु हमको कुछ सलाह दे रहे हैं। He's saying, first remove the plank from your own eye. और यीशु कहते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले तू अपनी आंखों से लट्ठा निकाल ले। Before you assist others, दूसरों को जांचने से पहले you need to examine yourself. आपको पहले अपने आप को जांचना है। You know, देखिए when you're on the plane, देखिए आप हवाई जहाज में होते you know, हैं there is a demonstration that happens. और देखिए वहां पर एक डेमोन्स्ट्रेशन पहले किया जाता You है। know, our travel person, she handles everything. She's here. All right. And, you know, they have the demonstration. और देखिए उनके पास डेमोन्स्ट्रेशन होता है Nobody looks at the demonstration. और कोई उनकी ओर देखता भी नहीं। Come on, hello, are you there? कितना समझ रहे हैं इस वक्त? Yeah, nobody looks at the कोई नहीं demonstration. देखते And they're posing, they're doing their test. और बेचारे वे लोग करते हैं, सब दिखाते हैं। Only when the plane shakes, that time everybody knows. सिर्फ जब प्लेन हवाई जहाज ऊपर से जब हिलने लग जाते तब पता चलता Now है। watch this. अब गौर करें, In that they say something. देखिए उसमें कुछ खास कहते हैं He's saying, before assisting others, assist yourself. और वे कहते हैं दूसरों को समझाने से पहले खुद को पहले आप समझ लो। How many of you know that? क्यों समझ रहे हैं? So today I was preparing the message. I saw that picture in front of my eyes. तो आज जब संदेश को तैयार कर रहे थे उस चित्र को इन्होंने अपनी आंखों के सामने And Jesus देखा। said, first remove the plank from your own eye, and then you can assist others. Then you can help others do something. Somebody say amen. और देखिए यीशु ने कहा कि पहले अपने आंख से लट्ठा निकाल ले, फिर उसके बाद तुम दूसरों की मदद कर सकोगे, तुम दूसरों की सहायता कर सकोगे निकालने के लिए। Look at somebody किसी को देखें, and say, let us examine ourselves. किसी को देखकर कहें चलो हम अपने आप को जांचेंगे। If only we can turn the spotlight from others on ourselves, I'm telling you, you and I will become better versions of ourselves. और देखिए सिर्फ स्पॉटलाइट जो है हम दूसरों के बजाय अपने ऊपर डाल लें तो हम अपना बेहतरीन संस्करण बन के आएंगे। You know, some of us have PhDs and masters in examining others. और देखिए हम में से कुछ लोगों में देखिए दूसरों को जांचने परखने में हमारे पास PhD की डिग्रियां हैं। Hello, are you with me right now? आप समझ रहे हैं इस वक्त? Yes. जी हाँ। But I believe the number one reason for failure is because we don't examine ourselves. देखिए यकीन मानते हैं कि हमारी नाकामी का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि हम अपने आप को नहीं जांचते। Hello, are you with me right? और क्या साथ में हैं आप इस वक्त? Please listen. मेहरबानी से And सुनिए।
another reason for not moving in the presence of God, not growing in the presence of God, is because we fail to examine ourselves. Today I want to talk to you about this, so listen very carefully. दूसरा कारण कि क्यों हम परमेश्वर की सम्मत में आगे बढ़ नहीं पाते हैं या काम नहीं कर पाते, वो ये है क्योंकि हम अपने को जांचने में नाकाम हो जाते हैं। Listen, church. अब सुनिए If कलीसिया, you and I, we want to grow in the presence of God. अगर आपको और मुझे हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना है, In the book of Ezekiel, यहेजकेल की पुस्तक there में are levels in the spirit. आत्मा में वहां पर अलग अलग स्तर दिखाए Come गए on, हैं। somebody say levels in the spirit. और चलिए कोई तो कहे आत्मा में स्तर। You know, in the book of Ezekiel, there is a Ezekiel की पुस्तक- river that flows from the throne of God. और देखिए वहां पर हम देखते हैं एक नदी जो परमेश्वर के सिंहासन से बहती है। Many years back, कई साल पहले while I was on a fast, I saw this river. जब पासवान जी उपवास के सत्र में थे, तब इन्होंने उस नदी को देखा था। Now, I don't claim to have seen everything, but I saw a bit of this river. I saw this river is like, it's actually full of life. और देखिए ये दावा नहीं करते कि सब कुछ आप इन्होंने उसी देखा है, उसी नहीं, तरह- थोड़ा सा हिस्सा इन्होंने देखा है, लेकिन वो नदी जो थी पूरी तरह that- जीवन से भरा हुआ था। That water looks different, वो पानी बिल्कुल अलग दिख रहा as था if it is alive. और ऐसा जैसे कि वो जीवित है। Hello, are you there right now? And I saw people going into that river. और इन्होंने देखा कि लोग उस नदी में से जाते हैं, I'm really telling you this. सच में बता रहा हूं, And they would come out और फिर बाहर आते हैं, and they would enter this city. फिर वे शहर में जाते हैं। And I was like, why are they entering to that river? और फिर इन्होंने पूछा कि ऐसा कि ये क्यों उस नदी में से होकर जा रहे हैं। And the Holy Spirit said, फिर पवित्र आत्मा ने कहा, you know, they're entering to that river and they're entering that city. देखिए उस नदी में से होकर फिर वे नगर में जाते हैं। And let me tell you, चलिए बताने दीजिए, this city is, you cannot see it. It's so bright. ये नगर, ये शहर इतना ऐसा चमकदार है कि आप देख नहीं सकते। And as they enter that, the Holy Spirit, you know, I don't know how to say this. It's not like He speaks, but you know it on the inside. और देखिए पता नहीं कैसे बताएं, ऐसा नहीं कि जो सिर्फ आप बोलते नहीं, आपके अंदर होता है। And the Holy Spirit said, फिर पवित्र आत्मा ने you know, कहा, when you enter through that river, जब तुम उस नदी में से होकर जाते हो, all your memories are wiped off. तुम्हारी सारी याददाश्तें जो है मिट जाती हैं। Hello, some people went through pain. Some people went through accidents. Hello, are you with me? कुछ लोग दर्द Through में से गए। sickness. They enter that. It's like those scars, those wounds are just washed off. और कुछ लोग देखिए एकदम दर्द में से गुजरे हैं, मुसीबतों में से गुजरे, Hello, are you एक्सीडेंट में से understanding what I'm गुजरे, लेकिन saying? वो घाव, वो जो ठेस जो होता है सब मिट जाता है। If you know, some people died in very tragic circumstances. और कुछ लोग बहुत ही एकदम दुर्घटनाग्रस्त, देखिए एकदम हादसे में उनका देहांत हुआ। That river, और वो नदी, that river is the river of life. वो नदी जो है जीवन की नदी है। Hello, it's real, huh? और सच में बता रहे हैं, I'm telling you. There are many things I can share with you. ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके साथ साझा किया Now, जा सकता है। this river of the Holy Spirit, Ezekiel saw it, and there are stages, there are levels in the Spirit. और देखिए यहेजकेल की पुस्तक में देखते हैं कि यह नदी, पवित्र आत्मा की नदी को यहेजकेल ने देखा और वहां पर अलग अलग स्तर उसके पाए जाते हैं। Many बताएं। people in this lifetime, some of them, I don't know about you, but some of them don't even make their feet wet. और देखिए बहुत सारे लोग अपने जीवन काल में, अपने जीवन भर में देखिए अपने कुछ लोग जो होते हैं वो अपने पाँव को गीला तक नहीं कर पाते इस नदी And में। then some people reach it to the ankle level, और उसके बाद कुछ लोग जो है टखने की गहराई तक आते then हैं, to the knee, फिर उसके बाद घुटने then तक, to the waist. फिर कमर तक। Very few people, बहुत ही कम लोग they reach to the level where instead of they telling the river what to do, the river takes them. जो उस Oh, you didn't स्तर तक understand. पहुंच जाते हैं जहां पर वे नदी से नहीं कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है, नदी खुद उन्हें ले जाती है। Hello, are you with me right और now? क्या साथ में हैं आप इस वक्त? Many times we tell the Lord, Lord, I want this to happen. देखिए बहुत बार हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं चाहता हूँ ये मेरे लिए होए, And I want to go there. और मैं वहां जाना And I चाहता हूँ, want you to do this. और मैं चाहता हूँ ये Now करें। there comes a point और ऐसा भी मामला आता है where you have no say. जहां पर आपको कहने के लिए कुछ Where नहीं होता, He tells you to do it and it happens. जहां पर वो आपसे कहता है करने के लिए और हो जाता है, Where you are not in control, He's in control. जहां पर देखिए आप नियंत्रण नहीं रखते, वो सब कुछ नियंत्रण Anyway, रखता I है। don't want to talk about that. खैर उस पर चर्चा नहीं करेंगे, But this is the river you will encounter in the secret place. लेकिन ये वो नदी है जिसका आप सामना करते हैं गुप्त स्थान में। I'm telling you, church. कह रहे हैं आपसे When कलिसिया, this river touches a family, जब ये नदी किसी परिवार को when छूती this है, river touches a home, जब ये नदी किसी घर को छूती है, every dead thing comes to life. हर एक मरी हुई चीजों में जीवन आ जाएगा, There is restoration. पुनः स्थापना होने लगेगा। If this river touches your marriage, देखिए अगर ये नदी आपकी शादी को छू ले, it's like you just got married. और ऐसा होगा जैसे कि आपकी शादी अभी That भी हुई है, excitement, that spice, that honey. Hello, are you with me right now? और देखिए वो It will एकदम come in रोमांच your life, in your marriage. आपके शादी में आ जाएगा।
I'm serious. कह रहे हैं आपसे, If this river touches your finances, अगर ये नदी आपके पैसों को छूती है तो there'll be like an unending flow of finances. पैसों का कभी न रुकने वाला बहाव आ जाएगा. Now we are not greedy for the money. Please understand. और देखिए हम पैसों के लिए लालची नहीं है, समझिए But we मेहरबानी. need money for the things. You can't tell the rickshaw driver, hallelujah. He'll say, bhai, paise पैसे की de. देखिए हमें जरूरत पड़ती है चीजों के लिए. आप रिक्शा ड्राइवर से हालेलुया बोल के नहीं कर सकते. You go to the supermarket, you say, praise the Lord. Hey, pay the money. सुपरमार्केट में जाके आप ऐसे नहीं बोल सकते प्रभु की स्तुति और सामान लेते So नहीं. God, are you getting my point what I'm तो आपको saying? समझ में आ रहा है जो कहा जा रहा है. So if this river touches your body, तो अगर ये नदी आपके शरीर को छू लेती है cancer can drop off. तो कैंसर भी निकल जाएगा. Now, I don't claim to reach, please listen. सुनिए. I'm not claim to reach there, but I'm reaching there. देखिए ऐसा दावा नहीं करते कि उस मुकाम पे पहुंच गए. नहीं नहीं नहीं, लेकिन पहुंच रहे हैं. Give me some time. कुछ We समय will be there दीजिएगा. soon. बहुत जल्दी पहुंचेंगे. How many understanding किधर this? समझ रहे हैं इस वक्त? I need your prayers. आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है. So today what I want to share with you तो आज जो आपके साथ साझा करने जा रहे is हैं out of my journey with the Holy Spirit. I want to share with you this. और पवित्र आत्मा के साथ जो इनकी यात्रा रही है उसी में से आपके साथ साझा Has my करेंगे. journey been perfect? No, sir. क्या इनकी यात्रा सिद्ध रही? नहीं जनाब. I have fallen many times. बहुत बार नाकाम रहे हैं. Have I made mistakes? क्या इनसे गलतियां हुई हैं? Many, more than बहुत. you. आपसे ज्यादा. So I think that's why God uses sometimes more people who have suffered the most and fallen the most. He makes them teach us. और देखिए इसलिए कभी कभी परमेश्वर So don't देखिए think उन लोगों I'm का ज्यादा more perfect इस्तेमाल than करता you. है You're जो better ज्यादा than me. दुख तकलीफ में हैं, जो ज्यादा गिरे हैं, इस तरह से उनको इस्तेमाल करके हमको सिखाता है. Hello, are you there? क्या साथ में हैं आप? So you see this river flows in the secret place. तो आप देखते हैं ये नदी जो है ये गुप्त स्थान में बहती है. That's why you need to understand this truth. और इसलिए आपको सच्चाई समझने की You may जरूरत है. be a person who's 70 years old. शायद हो सकता है आपकी उम्र 70 साल की हो And you're saying, what is the use of my life? और आप ऐसा कह रहे हैं मेरी जिंदगी का क्या फायदा. My dear friend, मेरे प्यारे दोस्त, if you can activate that river, अगर आप उस नदी को कार्यशील बनाएंगे your children's children will thank you for it. आपके बच्चों के बच्चे यानी नाती पोते भी आपका शुक्रिया अदा अरे करेंगे. अभी मेरा क्या जिंदगी, अभी मैं मरने वाला हूँ. अरे सर, ये जो जिंदगी है ना, इसे इस्तेमाल करो. जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी है ना, आपके पैर छुएगी, आपके फोटो छूकर आपको याद रखेगी हमेशा. Obey what the Holy Spirit is saying. जो पवित्र आत्मा भी कह रहा है उसका पालन करें. I want to tell the young people, नौजवानों से कहना if you चाहता हूं, can activate this river now, अगर इस नदी को आप अब भी कार्यशील बनाएं, your life will be a different life. आपकी जिंदगी बिल्कुल अलग हो जाएगी. Somebody say hallelujah. चलिए कोई तो कहे हालेलुया. Today, if you're interested now, I can share with you what I have to share now. देखिए अगर आज आप दिलचस्पी रखेंगे तो अभी आपके साथ साझा करेंगे जो जरूरी है. Go to Psalm 91 and verse 1. चलिए निकाले भजन संहिता का अध्याय 91 उसका पहला वचन. Psalm 91 verse 1. और भजन संहिता का अध्याय Open your 91. Bibles, everybody those who are watching me. जो लोग देख रहे हैं आप लोग भी मेहरबानी करें सभी लोग He बाइबल who खोलेंगे. dwells in the secret place of the Most High. जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में निवास करता है. Notice that word dwells. गौर करें निवास करना. In other words, a person who stays in the secret place of the Most High. God desires habitation and not just visitation. देखिए परमेश्वर अपेक्षा करता है कि आप वहां पर निवास करें. ऐसा नहीं कि सिर्फ आप आएं और जाएं. When Jesus visited Martha and Mary's house, he stayed with them. देखिए जब यीशु मार्था और मरियम के घर में गए तब वहां पर वो ठहरे. Hello, are you with me right now? It's his desire to stay with his people. और ये उसकी तमन्ना है कि अपने लोगों के साथ वो रहे. It is his desire that his people stay with him. और ये उसकी ये भी तमन्ना है कि उसके लोग उसके साथ रहें. That's why he's called God Emmanuel, God not who visits, God with us. इसलिए उसका नाम है How many परमेश्वर understanding इम्मानुएल. right now? इसका ऐसा नहीं कि आता है जाता नहीं, वो हमारे साथ रहता Now है. the concept in today's world is we go to meet God on a Sunday and we come home. और देखिए आज No. के दौर में देखिए विचारधारा ये है कि हम रविवार को जाते हैं परमेश्वर से मिलने फिर घर आ जाते हैं. नहीं No. नहीं नहीं नहीं. God stays with you. परमेश्वर आपके साथ रहता है. How many getting this right कितने now? लोगों को समझ में आ रहा है? Where you go, God goes with you. जहाँ कहीं आप जाते हैं परमेश्वर भी आपके साथ जाता है. Somebody lift your hand and say, I received this. चलिए कोई तो अपने हाथ उठाकर मैं ग्रहण करता हूँ इसे. Two disciples दो चेले. were talking on the road to Emmaus. इम्माउस के सड़क पे बात कर रहे थे They were talking. और वे बातचीत करते जा रहे थे And they became so close. और इतने एकदम करीबी हो गए. And they told him, और उन्होंने उसे कहा stay with us. हमारे साथ रहो. Come on. And he said, yes. और यीशु ने कहा हाँ. That's his desire. यही तो उसकी तमन्ना है. Sir, listen to me. सुनिए ध्यान से. Listen to me, sir. सुनिए. You are concentrating on your visa, you're concentrating on your money, you're concentrating. But if you can concentrate on the thing
then the rest of it will follow. देखिए आप अपनी वीजा और बाकी चीजों के लिए आप Nothing चिंतित wrong, हैं, nothing लेकिन अगर wrong. आप अपना Please पूरा don't ध्यान get प्रभु पर condemned. लगाएंगे सारी चीजों का समाधान हो जाएगा. Pastor, क्या मुझे गाड़ी मिलेगी? अरे, when you join the army, you don't say, भाई शर्ट मिलेगा. जब आप देखिए फौज में जुड़ते हैं हॅलो तो हॅलो देखिए, हॅलो. अरे बेटा शर्ट त्याच्या संगती येणार आहे. शर्ट उसके How many साथ understand what आएगी. I'm कितना saying? समझ रहे हैं इस वक्त. सर वो खाना मिलेगा? जा यार तू अंदर. आर्मी में भर्ती होगा तो खाना नहीं मिलेगा कहते हो. How many understand now? कितना समझ रहे हैं इस वक्त. That's what I want you to understand. यही तो I चाहते know हैं it's कि a आप समझें. crude example, और जानते हैं थोड़ा अजीब सा ये उदाहरण है, but I want you to understand this. ये चाहते हैं कि आप समझें. God says, you're in the army. You are mine now. So these things are in the package. देखिए परमेश्वर कहता है तुम मेरी फौज में हो, तुम अब मेरे हो चुके, तो ये सारी चीजें जो है If you तुम्हें यही पैकेज में understand मिलेंगी. this, अगर आप इस बात को समझ जाएं, it will liberate you. ये आपको आजाद कर देगी. He who dwells in the secret place of the Most High जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में निवास shall करता है, abide under the shadow of the Almighty. वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा. Come on, are you with me right now? चलिए क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त. Mary was under this shadow. मरियम भी इस छाया के अधीन में थी. Peter was under this shadow. पतरस भी इस छाया के अधीन में था. Whoever comes in that circle is affected and और impacted. जो कोई उस घेरे में आते हैं तो उन पर उसका असर पड़ जाता है और चंगाई मिलती है. Some mothers have entered this shadow. और कुछ माओं ने इस परछाई में, इस छाया में Oh, you're पदक not रखा. understanding. sir. ओ आप नहीं समझ रहे हैं. I want to tell the people over here. और यहाँ लोगों से कहना चाहते हैं, Please listen. सुनिए. If you can enter this place, the secret place. अगर आप इस गुप्त स्थान में कदम रख लें. Now let's go to the second part. चलिए जाते दूसरे भाग Sir, पे. listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से. Now God wants you to dwell in that secret place. Now to stay in the presence of God, there are certain principles. देखिए परमेश्वर चाहता है कि आप उस स्थान पे निवास करें. देखिए परमेश्वर की उपस्थिति में निवास करें, रहने के लिए कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनका पालन करना जरूरी है. How many of you listening right now? कितना सुन रहे हैं इस वक्त. To stay in the presence of God, there are certain principles. परमेश्वर की उपस्थिति में रुकने, रहने के लिए कुछ सिद्धांत मिलेंगे. Come on, are you getting me what I'm saying? क्या समझ है. Yes. Now, when I was a young boy, देखिए जब पासवान जी नौजवान युवक थे, लड़के, we often traveled to our native place, which is in Mangalore. अक्सर अपने गांव जाया करते थे जो कि मैंगलोर में है. Now, we were not like you guys, Those days, we used to travel by bus. Hello, anybody knows? और We had देखिए this उस bus जमाने called में Canada Pinto. Hello, और anybody बस knows? में जाते थे, याद है Jesus. कैनरा पिंटो बस. We had this bus. ये बस And हुआ करती थी हमारे. it was fun. और बहुत ही मजा आया करता था. It was a lot of fun. बहुत मजा आता था. And my brother and me, we used to sit over there and so excited. कि भाई और ये उसमें बैठते बहुत ही उत्साहित होते. It was a fun time for me and my brother. इनके और इनके भाई के लिए बड़े मजे का समय होता था. And then the best part was the bus used to stop at certain places. और अच्छी बात यह है कि बस जो है कुछ खास खास जगहों पर So it रुकती. was not just the destination, it was the journey that made it more exciting. तो देखिए ये मंजिल नहीं लेकिन यात्रा जो सफर होता था So- वही बात को रोमांचित कर So देता. we used to stop at this place. तो एक खास जगह पर हम My रुकते. goodness, then the restaurant. Hello, you know और what I फिर रेस्टोरेंट पे. Come on now. You ये तो people समझ- are all. So we young guys were only interested in the restaurant. हम नौजवान लोगों को सिर्फ रेस्टोरेंट में ही दिलचस्पी होती थी. So our dad was not a rich man, so he used to say, hello, the menu is only 2. Vada sambar and masala dosa. That was the only बस menu. इतना ही यही मेनू होता था. So I said, well, no problem. We used to say, no problem. At least we have a choice. तो कहते कोई बात नहीं, कम से कम हमारे पास चुनने के लिए तो कुछ तो है. Oh, goodness, Anyway, खैर. but me and my brother, we were very inquisitive, लेकिन Curious. पासवान जी और इनके भाई बहुत ही उत्सुक होते थे. So after everything, we used to, they used to blow the horn, pam pam. और देखिए, सब कुछ everybody हो जाने used to के come out to the bus, हॉर्न बजाते फिर ताकि सब लोग And अंदर the आ जाए. driver used to do something very strange. लेकिन उसके बाद ड्राइवर कुछ बहुत ही अजीब करते. He used to go and start patting the tires of the bus. और जाकर वो बस की जो टायर है उस पे मारते. Now we know, but now you are all wise people. But we were young guys that day. So we used to look, uncle, every time you get down, why you keep patting the tires? और पूछते हैं उत्सुकता में भर के कि अंकल हर जगह जहां पर भी रुकते हैं आप क्यों ऐसे जाकर हमेशा टायर को ऐसे थोड़ा मार के चेक करते And हैं. he was a kind guy. और बड़े अच्छे व्यक्ति We हुए. knew him because we used to regularly travel. और वाकिफ है क्योंकि नियमित तौर पे उसी गाड़ी में So जाते he थे. said, "Beta, listen." तब उन्होंने कहा बेटे सुनिए. He says the journey is long. Now remember, these are the exact words which I'm sharing. He said the journey is long, और उन्होंने बताया कि सफर काफी लंबा है and to make the journey, और सफर को पूरा करने के लिए I check the tires because I don't want us to be stranded in a place where things are difficult. Hello, are you there with me? फिर उन्होंने कहा कि And मुझे later on we understood. बाद में हम समझे इस बात को. This is my goodness. अरे बाप रे. This guy was examining the tires so that he could make the journey.
और ये व्यक्ति जो है टायर को बार बार जांच रहे, परख रहे, ताकि इस सफर को कामयाबी मिला so that सके, you don't get stranded. ताकि किसी तरह से मुसीबत में ना You know, आए। when I was studying this topic, और जब इस अध्ययन कर रहे थे इस विषय पर, that scene came to my eyes. वो दृश्य इनकी आंखों के सामने आया। Imagine a driver making a journey of 1,100 kilometers from Mumbai to Mangalore or Udupi or wherever. जरा He's कल्पना करें, examining the tires so diligently. How much more we must examine our lives so that we can make this pilgrimage properly. और देखिए एक ड्राइवर जो 1100 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के, देखिए बार बार जांच रहे about it. गाड़ी के लिए, उस सारी चीजों को जांच रहे, तो कितना ज्यादा जो कि हम लोग जो इस धरती पर श्रद्धालु के लिए श्रद्धालु के तौर पे जी रहे, कितना अपनी जिंदगी को जांचना चाहिए। You know, when Jacob met the Pharaoh, देखिए जब याकूब की मुलाकात फिरौन से हुई, listen, he comes before the Pharaoh. फिरौन के सामने आते हैं And the Pharaoh asks him, how old are you? और फिरौन उससे पूछता है तुम्हारी उम्र क्या है। He said, on this pilgrimage, my days have been evil, my years have been few. Did you read that? आपने पढ़ा है कि श्रद्धालु की इस जिंदगी He में calls मेरे it- दिन बहुत ही कम रहे, बहुत बुरे रहे, He calls his life a pilgrimage. और अपनी जिंदगी को एक श्रद्धालु जिंदगी कहता है, A pilgrimage, not a tourist destination, a pilgrimage. और कोई पर्यटक की मंजिल नहीं, श्रद्धालु। और जो टूरिस्ट होता है ना, वो दूरबीन लगा के इधर देखता, कभी उधर ए माकड़ हो, देख माकड़, अरे ये देख, इधर उधर देखते रहता है। वो खाली मजे मार रहा है। लेकिन जो स्टडी करने आया ना, उसका नजरिया कुछ अलग ही होता है। Please understand this. समझिए इसे। So there could be tourists over here. They could, but I believe there are pilgrims tonight. देखिए यहाँ पे पर्यटक हो सकते हैं, कोई लेकिन कोई लेकिन मानते हैं कि चल, श्रद्धालु। आ मेरे साथ देखने का, देख तू क्या होता है। अच्छा मैं आता है देखने के लिए। You're a tourist. आप एक पर्यटक हैं, चल तू तेरे को देखने को, देख अभी क्या देखने का है? He's a tourist, ये एक पर्यटक है, but a pilgrim. लेकिन श्रद्धालु। He moves through the journey and he learns something. और देखिए यात्रा सफर में से होकर गुजरते हैं और कुछ सीखते हैं। They carry the experience with them all through their lives. अपने पूरी जिंदगी भर अपने साथ वे अनुभव को लेकर चलते हैं। A tourist is waiting for another experience. और पर्यटक जो है दूसरे अनुभव के लिए इंतजार में रहते हैं। Come on. सुनिए, But a pilgrim, he lives with that experience all his life. लेकिन वो श्रद्धालु व्यक्ति जो होता है अपनी पूरी जिंदगी भर उस अनुभव के साथ जीता है। How many of you following me right कि जो now? समझ है इस वक्त, You see, church, आप देखते हैं कल that's how our life should be. इसी तरीके से हमारी जिंदगी होनी We चाहिए, are on a pilgrimage on this earth. और इस धरती पर हम श्रद्धालु की जिंदगी And जी to रहे हैं। continue our journey hand in hand with the Lord, और देखिए हमें अपने सफर को प्रभु के साथ हाथ में हाथ देकर पूरा भर करने के we लिए, have to make sure we are in agreement with Him. और इस बात को हमें पक्का करना है कि हम उसके साथ सहमति में हो। Amos 3:3. आमोस 3:3 He says, can two walk together? वहां में वचन कहता है, क्या दो जन साथ चल सकते Can हैं? two walk together? क्या दो जन साथ चल सकते हैं Unless they are in agreement. जब तक वे आपस में सहमत ना हो? If you want to walk with someone, अगर आप किसी के साथ चलना चाहते हैं, you need to walk in the same direction. You need to have the same mindset. Come on, help me now. देखिए आपको एक ही दिशा में चलना होगा, एक ही मानसिकता लेके चलना होगा। Whether it's a business partnership, चाहे whether it's a business का marriage partnership partnership, हो, चाहे शादी की पार्टनरशिप हो, whether it's any partnership, कोई भी पार्टनरशिप क्यों ना you हो, need some kind of agreement. Otherwise, the guy is thinking left, you're thinking right, and God knows where you land. किसी न किसी प्रकार से आपको Please समझ understand what I'm trying to और say. मेहरबानी करके समझिए इस बात को। There are some things you must agree on. ऐसी कुछ चीजें जिसमें आपको सहमत होना चाहिए, And if you agree, और अगर आप सहमत होते you हैं can walk very far. तो बहुत दूर तक जा सकते हैं, And the journey will be exciting. और वो जो यात्रा है, सफर जो एकदम रोमांचित होगा। Come on now, praise the Lord. You know, some people say bestie, you know, bestie. Not BST, okay? Bestie. Bestie is someone who agrees with you, who laughs with you when you laugh, who cries with you when you cry. Come on, help me right now. बेस्टी वो होते हैं जो आपके साथ Yeah. सहमत रहते You're हैं, in the जब same आपके साथ हंसते frame. हैं। Come on, help me now. This is what it is. यही है। Bestie. Some people will say BST. Never mind. Bestie, yeah, that's it. BSTIE. If I got that wrong, please. I was speaking in English, not Hebrew, okay? Listen now. So if you have to walk with God, so listen to me. तो ध्यान से सुनिए, अगर आप परमेश्वर का चलना चाहते हैं, You know, if you're just visiting God, fine, please do what you're doing. अगर आप सिर्फ आकर ऐसा देख के जाना चाहते हैं, खैर चल करते रहिए जो Pasa आप mein करना आलो तो last Sunday, very good. चाहते हैं। और very मुझे good. पिछले रविवार को Very आया था, good. बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। तर पुढच्या महिन्याला तुम्हाला भेटणार मी. Very good. अगले महीने में आपसे मिलूंगा, बहुत भेटत अच्छा। राहा, भेटत राहा. I'm not talking to such people. ऐसे लोगों से नहीं बोल I'm रहे, talking to the people who are saying, God, I want to walk so closely with you ऐसे लोगों से बोल रहे हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपके साथ बहुत ही करीब में होकर चलना चाहता हूँ, that people would know that I have walked with you.
ताकि लोग जान सके कि मैं आपके साथ चला हूं। And the Bible says Enoch walked with God. और बाइबल ऐसा कहती है कि हनोक परमेश्वर के साथ चला। Somebody say praise the Lord. चले कोई तो कहे प्रभु की स्तुति हो। Listen to this. सुनिए ध्यान से। Now there are three effective ways where we can how we can examine ourselves. और जैसे 3 असरदार तरीके हैं जिसके जरिए हम अपने आप को जांच सकते हैं। Look at somebody and say, examining yourselves किसी को देख करके अपने आप को जांचना is the key to walk in the presence of God. और ये चाबी है परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का। Hello, are you with me right क्या now? साथ में है आप इस वक्त? Yes. You know, before, listen to me. सुनिए ध्यान Please से। listen to me. सुनिए ध्यान से। You know, before the priest could enter to do the service of God, इससे पहले कि याजक अंदर जाके प्रभु के लिए सेवा टहल करते there was a bronze mirror. और वहां पर तांबे का ऐसा एक आईना Hello, जैसा hello, hello. ये सुन रहे There was a bronze mirror. और वहां पर तांबे का So आईना he जैसा would see himself. ताकि वो उसमें देख सके What was he doing? क्या करते वहां He was examining himself. और वहां अपने आप को जांचते Before you go out of your house, इससे पहले कि आप घर से बाहर जाए। come on, and don't get me wrong now. गलत मत समझिएगा ऐसा होता है ना। मम्मी बोलता अरे जा रे आईना टूटेगा जा. How many times we check ourselves? कितने बार हम अपने आप को जांचते हैं। We sit in the car, हम कार में बैठते हैं there is a mirror. और वहां पर भी आईने में हम देखते Come on now, hello. I'm telling you, कह रहे हैं आपसे we take so much care of our physical appearance. We are always examining ourselves. Even we ask others, ठीक है ना भाई? See, you see, this is in us. ये देखिए ये हमारे अंदर समाया This हुआ है। is in us. ये हमारे अंदर But we है have not taken it further. और हम इसे आगे नहीं ले जा रहे। Come on now. Hello, are you there? Yes, So I'm there there. are three ways. If you can understand this truth, अगर आप इस सच्चाई को समझ जाएं which God shared with me, I don't know about you, but for myself, I want to share with you now. जो परमेश्वर इनके साथ साझा किया है और आपके साथ अभी बताएं You will encounter the presence of God in a very deep manner. परमेश्वर की उपस्थिति से आप बहुत ही गहरे तौर पे मुठभेड़ करेंगे। Mama, when you lay hands on your children, Mama, I'm going for exam. When you just pray for them, they'll say, Mama, I just felt the presence of God. माँ जी जब आप बच्चों It पर will हाथ happen. रखेंगे जब एग्जाम के लिए जा रहे It हैं और will आप हाथ happen. रखेंगे तो Come on कहेंगे अरे मुझे प्रभु की उपस्थिति महसूस हो रही है ऐसा Your होगा। children will tell you, Mama, Dada, something is different about you. और आपके बच्चे आपसे कहेंगे कि माँ पिताजी कुछ तो अलग हो गया आपके Come साथ। on now, hallelujah. Three ways how we can examine ourselves. और 3 तरीके कैसे हम अपने आप को जांच सकते हैं। We go to our foundation scripture, 2 Corinthians 13, and give me verse 5. Here we are. Examine yourselves. अपने आप को जांच लो। What is the first way to examine yourselves? पहला तरीका क्या है अपने आप को See what जांचने it का? says. Examine yourself as to whether you are in the faith. अपने आप को जांचो परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। What the first thing? Examine yourselves whether you are in the faith. और देखिए पहली चीज कि अपने आप को हमें जांचना है कि हम विश्वास में हैं Every day. हर दिन। This is the first examination. ये पहली जांच है। Say it, everyone. Examine yourself whether you are in the faith. अपने आप को जांच लो कि क्या तुम विश्वास में हो। Now, your name doesn't suggest your faith. और देखिए आपका नाम जो है ये आपके विश्वास का सुझाव नहीं देता। Just because your name is Michael doesn't mean you're in the faith. और देखिए क्योंकि आपका नाम कोई ईसाई नाम है इसका मतलब ये नहीं कि आप विश्वास में हैं। Hello, hello, hello. Your name can be anything. आपका नाम कुछ भी हो सकता है। Examine yourself whether you're in the faith. Please listen. अपने आप को जांच लो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। Just because you're sitting in the church. Oh, I'm in the church for 20 years. So what? अब क्योंकि आप कलीसिया में बैठते हैं, ओ इस कलीसिया में पिछले 20 साल से मैं हूं, तो क्या हुआ? Judas was an apostle, man. Oh, और Jesus. यहूदा तो एक प्रेरित व्यक्ति था। Hello, are you there right क्या now? साथ में हैं आप? Yes. Examine yourselves whether you are in the faith. अपने आप को जांच लो कि क्या तुम विश्वास में हो। How do you do that? कि कैसे करते हैं Every आप? day check yourself. हर दिन अपने आप को जांचो। How do you check yourself? कैसे अपने आप You को check yourselves with the scriptures. वचनों के जरिए अपने आप को जांचो Come on. Is what I'm believing, कि जो मैं विश्वास कर रहा हूं is it in the word? क्या ये वचन में है? Come on. चलिए You can believe any nonsense. कोई भी बेतुका चीजों पर आप विश्वास कर सकते हैं। I sincerely believe. You can be sincerely wrong. मैं पूरी सच्चाई से विश्वास करता हूं। आप पूरी ईमानदारी सच्चाई से विश्वास करके भी एकदम गलत हो सकते हैं। Tell your neighbor you can sincerely believe. अपने पड़ोसी से कहें And you can be sincerely wrong. ईमानदारी से विश्वास करते हुए भी आप ईमानदारी से गलत ठहरेंगे। Because what you believe is not in the word of God. क्योंकि जो आप विश्वास करें परमेश्वर के वचन में नहीं है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hello, I समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. So what you believe? नहीं, my mother believed. That is what your mother believed. Now what you believe, is it in the word of God? Look at somebody and say, Mother Mary said, let it be done to me according to your word. Word, hey! और देखिए माता मरियम ने ऐसा कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। Everyone say, तेरे वचन के अनुसार. जोर से बोलिए. किसके अनुसार? So what I believe
तो जो मैं विश्वास करता हूं, Say everyone say right believing कहे will produce right living. सही विश्वास करना जो है सही जीवन को उत्पन्न करेगा। Right believing will produce right living. सही विश्वास करना सही जीवन जीने को उत्पन्न करेगा। How many of you following me? कितना Right now? समझ रहे हैं इस वक्त? So check yourself whether you are in the faith. तो अपने आप को जांच लो कि क्या आप विश्वास में हैं। How many of you following me, church? कितना समझ रहे हैं इस वक्त कलीसिया? Check yourself. अपने आप को जांचे। How do you check? Through कैसे the जांचते? word. वचन के जरिए। That's why I read the word. इसलिए मैं वचन पढ़ता हूँ। So when I read the word, जब मैं वचन पढ़ता हूँ, James, the Bible says, I see myself in the mirror of God's word. और याकूब की पत्री में ऐसा How many लिखा है कि understood जब this मैं right वचन को now? पढ़ता हूँ, तब मैं अपने आप को परमेश्वर के वचन के आईने में देखता हूँ। बाजू वाले को बोल, God has a mirror. अपने पड़ोसी को बोलिए, परमेश्वर के पास एक आईना है। So you see, every day early in the morning when I read the word, देखिए हर दिन तड़के सुबह जब मैं वचन पढ़ता हूँ, I'm taking a look at myself in the mirror. मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ। And let me tell you, और मुझे बताना दीजिए, God has a way of speaking. Whether you're reading Genesis or whether you're reading Leviticus, God will speak to you. देखिए परमेश्वर का तरीका है, देखिए बात करने का, चाहे आप Yes. पढ़ रहे हैं उत्पत्ति को या फिर पढ़ रहे हैं लेवी व्यवस्था को, परमेश्वर यकीन आपसे बात करेगा। Whether you're a preacher, whether you're a volunteer, whether you're just a normal church goer, God will speak to you. चाहे आप वॉलंटियर Amen. हो और आमतौर पे बस कलीसिया में जाने वाले व्यक्ति ही क्यों ना हो, चाहे आप प्रचारक ही क्यों ना, परमेश्वर जरूर आपसे बात करेगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I said, praise the Lord. हमने कहा प्रभु की स्तुति हो। Yes. जी हाँ, God will speak to you. परमेश्वर आपसे बात करेगा। Examine yourself. First examination. Everyone say first examination. सभी का पहला जांचना। Examine yourself whether you are in the faith or not. That you check yourself. दूसरों को पूछने की जरूरत नहीं, तुम खुद प्रभु बताएगा, देख तू विश्वास में नहीं चल रहा है। How many understanding this? कितने समझ इस बात को? तू विश्वास में नहीं चल रहा है, तू विश्वास में नहीं चल रहा है, थोड़ा भटक गया तू। तुम दूसरों को झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने आप को झूठ बोलना सबसे बड़ी बेवकूफी की निशानी है। तू जानता है रे, तू जानता है, अंदर तू जानता है कि तू भटक गया है, लेकिन बाहर से तू कहा हेलो प्रेज द लॉर्ड, हा हा हा, चुप तेरी तो छूटे। मैं सच बोल रहा हूं, तुम दूसरों को धोखा दे सकते हो, लेकिन खुदा के आईने में जब तुम देखोगे तब तुमको पता चलेगा कि तुम विश्वास में नहीं हो या विश्वास में हो। Everyone say, examine yourselves सभी लोग अपने आप को जांच लो whether you are in the faith कि क्या आप विश्वास में हो or not. या नहीं। You see the Bereans. Now, when you hear the word of God, देखिए जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, when you hear the word of जब God, आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, I can teach you nonsense. देखिए चाहे तो आपको कुछ भी बेतुका Never. सिखा I सकते don't do हैं, that. लेकिन कभी ऐसा नहीं But करेंगे। sometimes you're reading something on the internet. देखिए कभी कभी क्या होता है, इंटरनेट पे आप कुछ पढ़ लेते हैं, You have to check. आपको जांचना है। Whenever I see some content, जब कोई पासवान जी कोई ऐसे सामग्री कंटेंट को देखते हैं I don't absorb everything what they say. और जो वो कह रहे हैं सारी I चीजों go to the word of God. Everyone say word of God. परमेश्वर के वचन में जाते हैं, पहले Examine yourself. अपने आप को जांच लो, Otherwise, you could be deceived. नहीं तो आप बहकाए जा सकते हैं। Bible says the Bereans. There was a group of people called Bereans. I don't have time now. Acts 17:11. Please open your Bibles. और if you देखिए can. बाइबल ऐसा कहते हैं, बिरिया के लोग, ऐसे बिरिया के निवासी 17वां अध्याय, When they heard Paul preach, जब उन्होंने प्रेरित पौलुस को प्रचार करते हुए सुना, they said, "Let me check what this guy is saying or no." तब उन्होंने कहा चलो हम जांच कर देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कह रहा है सही है या नहीं। They searched the scriptures उन्होंने वचनों में जाकर to ढूंढने find लगे, out whether these things what Paul spoke was there or no. ये पता लगाने के लिए कि जो प्रेरित पौलुस ने जो बातें कही वो वचन में है कि नहीं। In this way, इस तरीके you से, can put yourselves in the faith. Everyone say in the faith. इस तरह से आप अपने आप को विश्वास में रख सकते हैं। How many of you following? कितना समझ रहे हैं? You can keep yourself in the faith. You can keep your family in the faith. आप अपने आप को विश्वास में रख सकते हैं, अपने परिवार को विश्वास में रख सकते हैं। Second thing, दूसरी चीज, what do you need to examine? आपको क्या जांचने की You जरूरत है? need to examine your works. आपको अपने कार्यों को जांचने की Look जरूरत at है। somebody and say, examine your works. किसी को देखकर कहें अपने कामों को जांचो। You can have the right faith inside, आपके अंदर सही विश्वास हो सकता है, but your faith, everyone say right faith inside, सभी लोग कहें but wrong works outside. अंदर तो सही विश्वास है लेकिन बाहर गलत काम हो रहे हैं। Come on. Hello, are you there? क्या साथ में हैं आप? So the second thing you need to is examine your works. तो दूसरी चीज जो आपको जांचने की जरूरत है वो है अपने कामों को जांच लो। Go to Galatians 6. चलिए निकाले गलातियों की पत्री 6वां अध्याय। Galatians 6 verse 3 and 5. He says, for if anyone thinks himself to be something when he is nothing, he deceives himself. देखिए गलातियों का 6वां अध्याय 3रा वचन, क्योंकि अगर कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। Hello, are you with me right now? क्या साथ में हैं आप? Now, many people, they देखिए, बहुत take सारे- on the titles, amazing titles now. और देखिए बहुत सारे लोग जो अद्भुत जो पदवियां उपाधि को लेते हैं Hello. Suddenly, like God starts using them little, और अचानक देखिए परमेश्वर Now, I थोड़ा don't want to उनको speak इस्तेमाल about करने this. लगता है।
Suddenly on Facebook their title changes. और अचानक देखिए फेसबुक पे उनका टाइटल जो है पदवी बदल जाती है. Look at somebody and say, किसी को देखकर कहे let God give you the title. परमेश्वर को ही आपको वो पदवी देने दीजिए. It's happening. ऐसा होता है. Great one. महान जन. Hello, I'm telling you. This, that. ये People are taking titles for themselves. और लोग अपने लिए ऐसे ऐसे पदवियां ले लेते हैं. Listen, church. सुनिए, Today I'm telling my church members. आज अपने कलीसिया If के you लोगों go से and pray for somebody, अगर आप जाकर किसी के लिए प्रार्थना करते let me tell you, हैं, बताने दीजिए the prophetic gift will work through you. भविष्यवाणी का वरदान आपके जरिए काम करेगा. Now why? क्यों? Because you are under the atmosphere of prophetic. क्योंकि भविष्यताएं के आयाम में हैं आप. No, seriously I'm telling you. गंभीरता से कह रहे हैं. The people who are connected with me, pastors and leaders, those who are connected with me. Pastor, I just attended one of your service. I went and preached. I started giving words of knowledge. People start coming out. I said, of course it will work like that. और लोग आकर बताते हैं कि एक बार It मैं will. आपकी सभा में हिस्सा लिया It's just और that you haven't this thing. बस यही है कि बस आपने पा लिया है. Right? You tried it, right? Right. आजमा कर देखें. Now imagine now you going tomorrow. और जरा कल्पना करें आप कल जाते हैं And tomorrow you are calling yourself prophet so and so. और आप अपने आप को भविष्यवक्ता नाम देते हैं. कोई बड़ा Hello, are you listening right now? ये सुन रहे हैं आप? Yes. He says he thinks himself to be something when he's nothing. He deceives himself. देखिए जब वो कुछ न होते हुए अपने So you have कुछ to सोचता है, check अपने your आप को धोखा works. देते हैं. Go to verse 4. और देखिए अपने कामों को आपको जांचना है. Look at somebody and say, don't just take titles like that. किसी को देखकर कहें पदवी और Just पदवी को wait, ऐसी मत ले wait, लीजिए. wait. ठहरे इंतजार करिए. You are prophetic but not yet prophet. देखिए आप भविष्यवक्ताएं तो हैं लेकिन अभी भविष्यवक्ता नहीं बने हैं. You are prophetic but yet not a prophet. A prophet is an office. Prophetic is a gift. और देखिए आप It's just भविष्यवक्ता function. तौर पे हैं There's an anointing. लेकिन Let's not- भविष्यवक्ता नहीं है. I'll talk about this in the prophetic school. भविष्यवक्ता जो होते हैं उनका वो बुलाहट होता है लेकिन भविष्यवक्ता ये वरदान के जरिए होता है. The course is coming out soon. Don't बहुत ही worry. जल्द कोर्स आने वाला है. Yes, verse 4. But let each one, everyone say, let each one, including the pastor, हर एक पासवान including को the मिलाकर congregation, मंडली को मिलाकर examine his own work. अपने ही कामों को जांच लें. Look at somebody and say, examine your work. किसी को और देखकर कहें अपने कामों को जांच लो. You're a volunteer. आप वॉलंटियर हैं. Examine your work. अपने कामों को जांच लो. How you are doing the volunteer? कैसे आप वॉलंटियर का काम कर रहे हैं? Suppose some little pressure comes, you lose your grams. मान लीजिए कोई थोड़ा सा दबाव आ जाता है तो एकदम आप आपे से बाहर हो जाते हैं. Chana gul. Hello, I'm serious. गंभीरता से कह रहे हैं. Examine. Sorry, but okay, let me give another example. किसका example तू यार? You know, I'm telling you. कह रहे हैं आपसे. Pressure comes, you lose your grams. और देखिए कुछ दबाव आता है तो आप अपना आपा खो बैठते हैं. Chana. Say it everyone. Examine your own work. अपने ही कामों को जांच लो. So nobody has to tell you. तो किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है. You check your work. आप अपने कामों को जांच You are लो. a worker in an office. आप मान लीजिए किसी ऑफिस में काम करने वाले Before your कर्मचारी हैं. boss gives you appraisal, you give yourself an appraisal. और देखिए इससे पहले कि Check आपके your work, बॉस hey! आपको तरक्की दे पहले आप अपने कामों को जांच लीजिए. Do I come in time? क्या मैं समय पर Do I आता do हूं? my work? क्या मैं अपना काम सही से Am I करता हूं? playing the cat and mouse game? क्या मैं यहाँ पर जो बिल्ली और चूहे का खेल खेलता हूँ? When the cat is away, the mouse will play. Hello? अरे बॉस अमेरिका गया है. एक हफ्ते बाद चलो यश करो, praise the Lord. Hello, are you examine? Say it everyone, examine your work. सभी लोग अपने कामों को जांच लो. फिर तुमको प्रमोशन मिलेगा नहीं ना तो तुम चिंता नहीं करोगे क्योंकि अगर तुम्हारा बॉस तुमको प्रमोशन नहीं देगा तो खुदा जरूर देगा. Come on, you missed it, man. देखिए, आप चूक गए. तुमको क्या लगता है बॉस से प्रमोशन आता है क्या? नहीं सर, प्रभु यहाँ से उठा के उधर डाल देगा और डबल प्रमोशन देगा. Somebody receive it. चलो कोई तो ग्रहण करें. Somebody receive it. It will कोई तो ग्रहण happen. करें. ऐसा होगा. It will happen. ऐसा होगा. It will happen. ऐसा होगा. I'm a man of God. It will happen. परमेश्वर की कृपा कहता है ऐसा होगा. Because now you are examining your own work. क्योंकि अभी आप अपने खुद के कामों को जांच रहे हैं. Come on, praise the Lord. चले कहे प्रभु की स्तुति हो. I have to check my work. How am I preaching on a Tuesday? Just because it's a small meeting, chalta? No, I have to examine. Everyone say examine. सभी लोग कहे, मुझे अपने को जांचने की Yes. जरूरत है कि कैसे मंगलवार को प्रचार करना. छोटी सभा हो तो मुझे कुछ भी नहीं प्रचार करना है. And then he will have rejoicing. फिर उसके पास आनंद मनाने का कारण Your होगा. rejoicing comes when you do an honest examination of your work. आपका And in himself alone and not in any other. Nobody appreciated me. So what? किसी ने मेरी सराहना नहीं की So तो what? कोई मेरी पीठ थपथपा नहीं. चुप. मैंने अपना काम जांचा. परमेश्वर का वचन जैसा कह रहा है
वैसे मैंने अपना काम किया, धन्यवाद प्रभु तू मुझे सिखा रहा है. How many of you follow me right? कितने समझ रहे हैं इस वक्त? You will have rejoicing. आपके पास आनंद Your मनाने का कारण business होगा. must be small. आपका व्यवसाय भले छोटा Are हो, you giving your 100%? क्या आप 100% मेहनत कर रहे हैं? Hello. Some people they have a business. कुछ लोगों के पास व्यवसाय होता है Just because they have a business, और क्योंकि बस उनके पास व्यवसाय है they will open their shop at 11 o'clock in the afternoon. और दोपहर के समझ लीजिए दोपहर के 11 बजे दरवाजा खोलेंगे. Hey. And already your competition has opened the shop morning 7 o'clock. और पहले से आपकी जो प्रतिस्पर्धी हैं उन्होंने तो सुबह 7 बजे ही शटर खोल लिया है. और तू 11 बजे लुढ़क लुढ़क के आता है ऐसा ऐसा माइकल जैक्सन के जैसा. और बाद में बोल रहा है पास्टर प्रेयर करो, कुछ नहीं हो रहा है. 3 बजे जाता है, सोता आता है 6 बजे और बंद करता है 8 बजे. Examine your work. अपने कामों को जांच लो. Look at somebody and say, don't only talk to the devil about the devil. Devil बहुत काम कर रहा है. तू काम ही नहीं करता इसलिए devil काम करता है. हेलो. यस बहुत स्लो आ रहा है. कोई बात नहीं भाई, मैं तुम लोग स्लो बोलेगा मैं जोर से बोलूंगा. Said everyone, examine yourself. चलिए सब लोग कहे अपने आप को जांच Say it लो. again, examine yourself. फिर से कहे अपने आप को जांच लो. So you see, we need to ensure that our work, our deeds and actions are in agreement with the word of God. तो देखिए हमें इस बात को पक्का करना चाहिए कि हमारे कार्य, हमारी सारी गतिविधियां, हमारे सारे काम परमेश्वर के वचन से मेल खाते हैं. It's not enough to learn God's word. सिर्फ परमेश्वर के वचन को सीखना ही काफी नहीं You है. have to apply it in your life. आपको उसे अपनी जिंदगी में लागू करने की जरूरत है. Somebody say, I'm receiving right now. चलिए कोई तो कहे मैं ग्रहण कर रहा हूं इस वक्त. You may have a lot of head knowledge. शायद हो सकता है आपके पास बहुत ही दिमागी ज्ञान हो. Matthew 6:33. Pa, 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 pa. मत्ती का 6वां अध्याय 33वां. Romans 8:20. Pa, 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 pa. रोमियो का 8:20 एकदम मुंह जबानी याद होता But है. your life doesn't show the word. लेकिन आपकी जिंदगी वचन को नहीं दिखा रही. How many of you following me right now? कितने समझ रहे हैं इस वक्त? Yes, it should show. ये दिखना चाहिए. Look at somebody and say, examine your work. किसी को देखकर कहें अपने कामों को जांच लो. How many of you following me right now? कितने समझ रहे हैं इस So वक्त? you check your life. तो Church. आप अपनी जिंदगी को जांचें. How is your life? कैसी है आपकी Like जिंदगी? you're praying in tongues. Shakara bara 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 क्या आप bara अन्य भाषा bara प्रार्थना bara करें bara. शिकारा बारा बारा बारा. And then afterwards you go and fight with somebody और outside. फिर बाहर जाकर आप किसी से लड़ते झगड़ते हैं. I'm telling you, don't worry, don't worry. फिक्र मत करिए. यहाँ Babies देखिए cry. You also cried, okay? बच्चे रोते हैं. आप लोग भी रोए हैं. तुम स्वर्ग से नहीं आया. मैं नहीं रोता था. तू रोया. तो बेबी रोने लगा, सब लोग देखते. तू रोए नहीं क्या? Say it everyone. सभी लोग कहें Examine your own work. अपने ही कामों को जांच लो. Are you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? Yes. Sometimes we cannot talk to others. Somebody says, sister, जरा वो बैठो. तू जानता है मैं कौन है? नहीं जानता. यीशु मसीह तो नहीं है तू. How? I'm telling you, church. कह रहे हैं आपसे कलीसिया. Have you been like that? क्या कभी अभी आप ऐसे दौर में रहे हैं? Praise the Lord. I hope you will not get angry on me. आशा करते हैं कि आप लोग गुस्सा नहीं होंगे. Doesn't matter. I examine my own work. फर्क नहीं पड़ता. अपने कामों को जांचते हैं. So this is the second examination. तो ये दूसरा रहा उदाहरण. The third one. जांचने का. And we close. और तीसरा फिर समाप्त करेंगे. Examine yourself through the eyes of God. अपने आप को जांच लो परमेश्वर की आंखों से. Now this is important. बहुत So the महत्वपूर्ण है. first one is you examine yourself whether you are in the faith. देखिए पहली बात यह होता है कि आप अपने आप को जांचते हैं कि आप क्या विश्वास में हैं. Judas failed to examine himself whether he was in the faith. और यहूदा अपने आप को जांचने में नाकाम हो गया कि वो विश्वास में था या नहीं. He was there sitting with Jesus. वो वहां पर यीशु के पास बैठा करता था. Jesus को ही भेज दिया उसने. फिर यीशु को भेज दिया. Hello. I'm telling you. उसका काम हो गया, बोले यीशु को ही भेज दो. Second, दूसरा he didn't examine himself उसने अपने आप को नहीं जांचा whether his works are right or no. कि उसके काम सही हैं कि नहीं. Hello, are you there? क्या साथ में हैं आप? And the third thing, और तीसरी चीज examine yourself from the eyes of God. Listen to अपने this. आप को परमेश्वर की नजरों से जांचना है. Many times we want to show to the world देखिए, one बहुत- picture of ours and we are something else. देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम दुनिया को तो अपना एक पहलू दिखाना चाहते हैं लेकिन असलियत में हम होते कुछ Now, और हैं. please listen what I'm saying. अब मेहरबानी करके सुनिए. It doesn't matter what somebody thinks of you. इससे फर्क That's नहीं पड़ता. called your reputation. But what God thinks of you, that's your character. लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये आपका मान सम्मान होता है, लेकिन परमेश्वर जो सोचता है आपके बारे में वो होता है आपका चरित्र. Anointing does not come by reputation. Anointing comes by character. और देखिए अभिषेक मान सम्मान के जरिए नहीं आता है, अभिषेक आता है चरित्र के द्वारा. You can lose your reputation, आप अपना मान सम्मान गंवा सकते but हैं, once you received, खड़ा करेगा, and when the anointing comes, what you lost will come back to you. तो फिर जब एक बार जब अभिषेक आ जाता है तो जो कुछ Doesn't आपने matter. गंवाया वो भी आपके पास वापस आ Come जाएगा. on, praise the Lord. चलिए कहें प्रभु When स्तुति हो. lives change, when people's seriously things happen,
जब चीजें बदल जाती हैं, लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। Hello, are you with me, church? आप समझने का लिया। This is one thing which you must take care of yourself. ये वो एक खास चीज है जिसके लिए आपको अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए। When you come in the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, you have to be very, very careful. आपको बहुत ही सावधान रहना The है। more close you are to God, जितना ज्यादा प्रभु के आप करीब आते हैं, the more you need to examine yourself. उतना ही ज्यादा आपको अपने आप को जांचना है। Hello, are you there right now? क्या साथ में हैं आप इस वक्त? You know, some of the questions I asked God, can I share with you? देखो कुछ सवाल जो I'll share. भगवान These की are तरफ से very पूछे, tough questions. बहुत ही एकदम मुश्किल सवाल। Why am I serving God? मैं क्यों प्रभु की सेवा कर रहा हूँ? Very tough question. बहुत ही मुश्किल सवाल। You know, sometimes I ask, why am I serving God? कभी कभी मैं पूछता हूँ, प्रभु की Lord- सेवा क्यों कर रहा हूँ? Is my heart right before you? क्या प्रभु मेरा दिल तेरे सामने सही है? And the Lord will, you know, ask you this question. And then you have to understand. फिर प्रभु आपसे सवाल पूछे, फिर आपको समझने की जरूरत है। Hello. सुनिए, If you're in the choir, you must ask yourself, why am I singing for the Lord? देखिए अगर आप क्वायर मंडली में हैं तो आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है कि आपको पूछना चाहिए कि मैं क्यों क्वायर में हूँ। Hello, sometimes it's not about the Lord, it's about, कभी कभी देखिए प्रभु यहाँ मायने नहीं come रखता, on, लेकिन now, हम no offense to anyone. और किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। Hello. सुनिए सुनिए सुनिए, Please listen to this. बड़े ध्यान से सुने। Is it about because of the name and the fame? क्या ये नाम और शोहरत के लिए हो रहा है? At that time, उस समय you need to get your heart right before God. आपको अपना दिल परमेश्वर के सामने सही करने की जरूरत है। And if you don't do that, और अगर आप ऐसा नहीं करते, you will fall. आप नाकाम हो जाएंगे, You'll fall. आप गिर जाएंगे, You'll fall. आप गिर जाएंगे। Examine yourself whether you're in the faith. This is first step. Examine yourself, your works, and examine. And let God examine you now. अपने आप को जांच लेना कि आप विश्वास में हैं या नहीं, उसके बाद अपने This कामों is को the जांचना, toughest examination. फिर उसके बाद परमेश्वर को इजाजत देना कि वो आपको जांचे। Now ये you सबसे examine मुश्किल। yourself, and then finally you go to God and say, God. देखिए आप अपने आप को जांच लेते, फिर आप परमेश्वर के पास जाते और कहते हैं परमेश्वर, This is what David did. यही तो दाऊद ने किया। Look at what David says. देखिए दाऊद ने क्या कहा? Can you put it up, please? Psalm 139, भजन संहिता का अध्याय 139 verse 23. उसका He 23वां। says, search me, O God. उसने कहा प्रभु मुझे जांच ले। God scanning. Hello. First it was man scanning. Now it is God scanning. He says, search me. Everyone says, search me, O God. कहता है प्रभु के नजर से कुछ नहीं छुपता रे बाबा. Search me, O God. हे परमेश्वर मुझे जांच ले। Lord, search me. Is there any lust in me, Lord? प्रभु क्या मेरे अंदर कोई अभिलाषा छिपी हुई है? Now as men and as women in this world, we are bombarded by these things. और देखिए इस दुनिया में एक मर्द Come और on now. स्त्री होने के You नाते guys देखिए are- इन अरे चीजों की बमबारी हम पर होती रहती है। But when you come in the presence of God, लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं, allow God to move like a light. इजाजत दीजिए कि परमेश्वर एक ज्योति के समान कार्य करे, And you ask the cleansing power of God. और फिर उसके आप परमेश्वर से उसकी शुद्ध करने वाली सामर्थ को Is मांगे। there pride in your heart? क्या आपके दिल में कोई घमंड बसा हुआ है? Oh, I'm something. ओ मैं कोई खास व्यक्ति Oh, हूँ, I'm this. ओ मैं ये हूँ। Not be much, it be little. देखिए भले ज्यादा ना, लेकिन थोड़ा तो हो। Are you getting my point, क्या church? आपको समझ में आ रहा है कलीसिया? And that one said like that. उसने ऐसा कहा। What does he think of वो himself? अपने बारे में क्या सोचता है? Offense. ठेस। Sometimes the offense is not towards the people, it's towards us, our own people in the house. और कभी कभी देखिए ठेस जो बाहर के लोगों के लिए नहीं होता, देखिए हमारे खुद के। Search me, O God, मुझे जांच and ले know प्रभु, my heart. और मेरे दिल को जान ले। Test me and know my thoughts, the inner thoughts. Everyone say inner thoughts. सब लोग क्या है? अंदरूनी How do विचार। you see people? कैसे आप लोगों को देखते हैं? Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण। I'm sure. Can I share these things? क्या with आपके you? साथ साझा कर सकते हैं इन These are चीजों the, को? this is what this stage I'm on. It's not like the men examining you, it's like God examining you. ऐसा नहीं कि इंसान आपको जांच रहे, यहाँ पर परमेश्वर खुद आपको जांच रहा है, And this is where the promotion takes place. और यहीं पर तरक्कियां होती हैं। अरे यार तुम मिस हो गए भाई. You see, Judas, last point. Judas never allowed himself to examine by Jesus. देखिए यहूदा ने कभी अपने आप को इजाजत नहीं दी कि यीशु उसे जांचे। बोले प्रभु तूने वो समारिटन स्त्री को बोला तू तेरे 5 पति हैं तू छठे के साथ है. Come on, hello. प्रभु मेरे बारे में कुछ बोला. Come on now. चलिए प्रभु अरे जो प्रभु को 5 पति दिखे और छठा पति दिखा, वो क्या यीशु मसीह क्या उसको नहीं जानता था कि वो चोरी कर रहा है? यीशु मसीह के साथ तो बैठा रहता था, वो बाजू में बैठा रहता था. What do you think? God doesn't know? आपको क्या लगता है परमेश्वर नहीं जानता इस बात को? But you never allowed yourself to be examined by God. कभी आपने इजाजत नहीं दी कि परमेश्वर आपको जांचे।
God. Now, I know you may be going through challenges. You may be going through weaknesses. समझ सकते हैं कि आप चुनौतियों में से जा रहे हो, God is कमजोरियों में not, से जा रहे हो। God understands our weaknesses. परमेश्वर हमारी कमजोरियों को अच्छे से समझता But है। if you can say, God, लेकिन अगर आप कहें परमेश्वर, please examine me, Lord. मेहरबानी करके मुझे Give जांच me a परख, report card of mine, Lord. मुझे मेरा खुद का रिपोर्ट कार्ड दिखा प्रभु। Help me to deal with those things. मेरी मदद कर उन चीजों से निपटने के Look at लिए। somebody and say, there shall be promotion. और किसी को देखकर कहें तरक्की मिलेगी। Many of us say, Lord, me. Me. Oh, बहुत सारे लोग hallelujah. कहते हैं, मैं प्रभु मैं हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। बोले भाई तू बाहर ही चिल्ला रहा है, आउटर कोर्ट में चिल्ला रहा है, बाहरी आंगन में चिल्ला आउटर रहे हो। कोर्ट में बहुत आवाज होती है, लेकिन when you come into the secret place, लेकिन जब आप गुप्त स्थान में आते हैं, there's silence. एकदम खामोशी रहती है वहां, There is silence. खामोशी होती है। And in the silence, God just operates on you. और उस खामोशी में देखिए He परमेश्वर का shows काम you करता your unforgiveness. है। वो आपको दिखाते कि आप में अक्षमा है। Come on now. चलिए, Lord, मैं क्यों क्षमा करूं प्रभु? मेरी क्या गलती है? उसने लफड़ा किया, मैंने तेरे बहुत पाप क्षमा किए। अरे बताओ क्या तेरा शीट, तेरी फाइल बताओ क्या? नहीं प्रभु रहने दे। आपको पता नहीं मेरी फाइल बहुत बड़ी है भाई। कभी वो मेरी फाइल प्रभु खोलता है, बताओ कि तेरी फाइल नहीं बताओ। ठीक है, क्षमा करो उसको। I'm telling you, church. कह रहे हैं आपसे कलीसिया, This is the place. Everyone says secret place. सब लोग के गुप्त स्थान, Where you allow God to examine yourself. जहाँ पर आप परमेश्वर को इजाजत देते हैं कि आपको जांचे। At that time, उस समय पर the presence of God just moves upon your life. परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में मंडराने लगती है। Now there's no room for anybody's examination. अब कहीं किसी दूसरे को जांचने के लिए जगह नहीं बची है, And God just changes you. और परमेश्वर आपको बदल The देता है। devil has no hold over you. और शैतान के आप पर कोई पकड़ The नहीं devil रहता। has no place over you. शैतान के आप पर कोई अधिकार नहीं रह Oh, जाता। it's broken. ओ ये टूट चुका है, Deliverance happens over here. छुटकारा होने लग जाता है। Oh, is somebody listening over ओ here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Somebody listening over here. कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? That depression leaves you. That thing, it just, it breaks over वो you. तनाव आपको छोड़ के चला जाता है, वो चीज टूट जाती है आप पर से। In the name of Jesus. यीशु के नाम में This is how it happens. इसी तरीके से ये होता है। Lord, what is that root of that? Fear? Lord, I give my fear to you. प्रभु उस चीज की जड़ क्या है? डर। प्रभु मैं अपना डर तुझे देता हूँ। Fear is us. Look, I said not you. I said us not trusting God. Come on. और डर देके जो हम में होता है, Can I देखो, tell you the definition of fear? क्या आपको बता सकते हैं डर की परिभाषा? Fear डर is us not trusting God. ये हम पे कि हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं The करते। invitation to walk on the water was not only to Peter, it was to all the 12, but one said, let me try it now. और देखिए Jesus. पानी पर चलने का निमंत्रण जो सिर्फ पतरस को नहीं दिया गया था, सारे 12 को दिया गया था। Jesus लेकिन did not- पतरस ने कहा चलो मैं चलता हूँ। Jesus did not say, come Peter. और यीशु ने ऐसा नहीं कहा पतरस Read the आओ, gospel. He बाइबल said, पढ़िए। come. यीशु ने बस कहा Look, आओ। suppose if I say, come, यीशु ने सिर्फ कहा आओ, and only Radhika comes, or Shruti comes, or he comes. It's come. Everyone say, come. देखिए आओ। लेकिन दो ही लोग आते हैं. Come, Wilson. Come, Kathy, whatever. It was for everyone. ये हर एक के लिए बुलावा था। आए एक जन. बाकी लोग क्या हुआ? बोले डूब गया तो. कह रहा है भाई. So fear. What will happen? क्या हो जाएगा? God who's kept you alive from the pandemic. परमेश्वर जिसने आपको इस महामारी के दौर से निकल के भी बड़े बड़े बिल्डर गए भाई, बॉडी बिल्डर गए 12 के भाव में, तुम अभी भी खड़े हो भाई. तुमने खांसा, क्या क्या नहीं हुआ तुमको. खांसी आई, फांसी आई, लेकिन कुछ नहीं हुआ. It is God who brought you out. ये परमेश्वर Think जिसने about it. आपको It's बाहर God who brought you out. लाया। ये परमेश्वर जिसने आपको Lift, बाहर लाया। come on, praise the Lord. चले कहें प्रभु स्तुति हो। Some of you, आप what इसको- all you needed for breathing, for this, you think you were over, but somehow God brought you आप में से out. कुछ लोगों को क्या कुछ की जरूरत पड़ी, देखिए मशीन की जरूरत पड़ी, लेकिन आपको लगा कि सब खत्म हुआ अभी Today. नहीं, लेकिन परमेश्वर बाहर लाया Come. आपको। Are you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? Sir, listen to me. सुनिए ध्यान से। If you have something inside of you, अगर कुछ तो आपके अंदर है then today, तो आज examine yourself whether you are in the faith. अपने आप को जांच लोगे कि आप विश्वास में हैं। Examine yourself, अपने आप को जांच your लो, works, अपने कामों को, what you're doing, is it right? कि जो आप कर रहे हैं क्या सच सही है? Pastor, इतना लेना चाहिए कि इतना लेना चाहिए. अरे तू खुद जानता है रे, मेरे से क्यों पूछ रहा तू? Pastor, एक सिगरेट मार सकता है क्या? तू जानता है रे, खाली फुकट पास्टर लोगों को फंसाने के लिए तू पूछता है.
पास्टर एक चम्मच जर्दा खा सकता? पीपल राइट टू मी लाइक दैट. नो रियली. सचमुच है ऐसा. मेरे को क्यों पूछता है? नहीं, मैं क्या अपने दुख को मेरे सेक्रेटरी के साथ शेयर कर सकता हूं? सिस्टर, यू डोंट नो माई ईमेल. इफ यू रीड माई ईमेल, इट्स बेटर देन द नॉवेल. अभी इनके ईमेल को पढ़ेंगे तो वो नॉवेल से भी ज्यादा बेहतर You आपको don't लगेगा. know. Sometimes it gets very interesting. I have to sanctify my mind after reading my email. It's crazy. The stuff, the filth that comes. और इतने गंदे एकदम घटिया घटिया रहे होते हुए It's too much. बहुत ज्यादा People pour it out. लोग बस उंडेल देते हैं. Sometimes that thing has to go from you. कभी कभी वो चीज को आपके पास से जानी चाहिए. How many understand this? In the name of Jesus. यीशु के नाम में.